Hello, so here I am with the green pile reveals. So let's see what the green pile wants to convey to you. I'll show you the cards. Here are the cards, the tarot messages, and here's the angel message. Okay, so I believe that all the people who chose the green pile, your relationship is going through on a transformational process. एक transformational process है आपके relationship में. Things are transforming. Things are just it is moving around the thing. It is moving around the corner the way you are not expecting it. हो सकता है आपको अपनी रिलेशनशिप पे थोड़ा सा पॉज फील हो रहा हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जीज फील हो रही हो. बट अगेन इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आपकी रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशनल प्रोसेस. दैट मीन्स इट इज ओवरकमिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आज तक अभी तक बहुत ज़्यादा इतना आपने उस पर ध्यान नहीं दिया था, आपने उस पर इतना कंसिडर नहीं किया था. यूनिवर्स इज गिविंग यू द चांस, द यूनिवर्स इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू reconsider those things, to understand those things, and look from a bigger and larger perspective. For a clarity, universe is giving you the small pause in your relationship. Do not lose your faith. I can sense कि काफ़ी सारे efforts maybe आप कर रहे हैं अपनी relationship की तरफ, but you're not getting that rewards. Convert नहीं हो रही हैं चीज़ें आपके लिए. Maybe आपके clashes हो रहे हैं, आपके partner नहीं समझ रहे हैं, या maybe any other things, कोई external influence है आपके relationship पे जिसकी वजह से things are not getting converted. So I believe it's a small time period, it's a small pause in your relationship. एक transitional process है, एक transformation process आपकी relationship is going through. अपने efforts करिए. Keep on working ahead for your relationship if you have the faith and if you want to go ahead with this particular relationship only. Just work with more faith and let it go. Let things right now, just leave things. Do not hold on to a lot of things. Maybe you're expecting a lot from your partner and your partner is not being very, you can say, supportive आपको लेकर, या he or she is not being very open about his or her feelings. So I would say कि right now, rather than putting all your energies into the relationship, it's time period for you to channelize your energies. Try to develop your own self. Try to work upon your own self. Maybe your own anxieties, maybe your own overthinking, maybe your एनी नेगेटिव ट्रेड जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को हिंडर कर रहा है, उस पर वर्क करिए. एंड बहुत ज़्यादा डू नॉट ओवर इंडल्ज योर सेल्फ इन टू द रिलेशनशिप. बहुत ज़्यादा सीख मत करिए इस टाइम पे अपनी रिलेशनशिप से, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द वे यू वॉन्टेड फॉर द टाइम पीरियड. सो इट्स बेटर टू जस्ट लीव थिंग्स अपने ही पेस पर एंड लेट द यूनिवर्स, लेट द टाइम पीरियड वर्क अराउंड एंड हेल्प यू गेट द रिलेशनशिप कन्वर्टेड फॉर योर ओन सेल्फ. सो आई वुड से कि अपने एफर्ट्स करिए, जेन्युइन एफर्ट्स करिए, बट बहुत ज्यादा किसी भी चीज में ना ओवर इंडल्ज मत करिए जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल हेल्थ निगलेक्ट करें या अपने वर्क को निगलेक्ट करें, विच इज नॉट नीडेड. इट्स जस्ट टेम्पररी पॉज, यू कैन से. यूनिवर्स वांटेड इट. एक ट्रांजिशनल फेज चल रहा है आपके रिलेशनशिप का. एंड अगर एक स्ट्रॉन्ग सी बात है, अगर आपने ये फेज एक साथ निभा लिया तो आई बिलीव फिर आपके रिलेशनशिप को और आपके पार्टनर को कोई भी नहीं खराब कर सकता है, एंड कर सकता. सो इट्स जस्ट यू कैन से अ ग्रेस पीरियड. ऊपर वाला इज गिविंग यू अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टू अंडरस्टैंड, टू ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप इन अ बेटर वे. एंड द मैसेज इज वेरी ब्यूटिफुल. द Mariam sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. Maybe right now things are not converting for you, but बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ना अपने नेगेटिव मत होइए अपने पार्टनर को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर. इट्स जस्ट द टाइम पीरियड. Forgive for the time period. Forgive all the expectations. Leave all the things. Let it go all the things and just try to focus on your own self. Just try to channelize your own energies ताकि आप चीज़ों के लिए थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो सकें एंड आप अपने आप के लिए वर्क कर सकते हैं, अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं. जो जेन्युइन एफर्ट्स आप चाहते हैं रिलेशनशिप के प्रति काम करना, वो आप कर सकते हैं. बट बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस आई वुड नॉट सजेस्ट. इट्स बेटर फॉर बोथ ऑफ यू कि थोड़ा सा लेट अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट पॉज जो रिलेशनशिप में आया है, बिकॉज इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड फॉर बोथ ऑफ यू. लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स फॉर योर रिलेशनशिप इन द कमिंग टाइम पीरियड. बट फॉर द टाइम पीरियड, just forgive all the things and
try to heal yourself, try to see the better in all the things. जो भी हो रहा है, just understand that universe is blessing you somewhere or the other. Universe is trying to convey you the clarity that you need to understand for the time period. उस चीज़ को समझिए, अपने ऊपर वर्क करिए, अपने सीक्रेट विजन पे वर्क करिए, and you will see that you'll unlock a lot of answers from this you can say एक रुकी हुई सिचुएशन से भी you'll get a lot of answers if you'll start working upon your own self, and will develop that faith that whatever is happening is happening for your own betterment and for your relationships betterment. अगर ये आपके लिए ठीक है तो ओवर द टाइम पीरियड आप ये भी टाइम एक साथ निकाल लेंगे. नहीं ठीक तो मे बी यू आर गेटिंग अ टाइम टू अंडरस्टैंड, टू क्लियर द थिंग्स दैट इज इट द थिंग दैट यू वांट इन द फ्यूचर टुगेदर. हो सकता है शायद आपके पार्टनर अभी नहीं चीज़ों को समझ रहे हो, या आप अपने पार्टनर को नहीं समझ रहे हो, कोई आप दोनों में से बहुत ज़्यादा एक मटीरियलिस्टिक हो रहा हो एंड मे बी निगलेक्ट कर रहा हो रिलेशनशिप को. बट इफ यू आर गेटिंग दिस पॉज, मेक यूज ऑफ दिस पॉज टू अंडरस्टैंड दैट is this the pattern that you want for the entire life period, and yes, you'll get the answer and definitely things will work around for you. And for the singles, I would say आई बिलीव आप लोगों ने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक बाउंड कर लिया है चीज़ों को लेकर. मे बी यू नॉट कंसिडरिंग अ सीक्रेट विजन, नॉट कंसिडरिंग अ बिगर पिक्चर. ऑन द अदर हैंड शायद आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ना, एक होता है ना, बाउंड है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, और ट्रांसफॉर्म आपको अपने आप को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इट्स टाइम पीरियड फॉर यू टू डेवलप योर ओन सेल्फ. फॉर सिंगल्स आई वुड से कि आपके लिए एक टाइम पीरियड है कि अपने ऊपर वर्क करें, अपनी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एंजाइटी है, एनीथिंग जो समवेयर और द अदर आपको लगता है कि हाँ दिस इज द थिंग कि ये मुझे कहीं ना कहीं रोक रही है टू गो हेड इनटू अ न्यू रिलेशनशिप और टू अट्रैक्ट समवन इन माय लाइफ. तो इट्स टाइम पीरियड फॉर यू टू वर्क अपॉन दोज रिलेशनशिप. एक लर्निंग फेज है आपके लिए, एक लर्निंग टाइम पीरियड है आपके लिए कि वर्क अपॉन योर ओन सेल्फ, ताकि यू कैन मेक दी कमिंग रिलेशनशिप वर्क फॉर यू. बाकी इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, ट्रांजिशनल कार्ड. मे बी यू गोइंग थ्रू समथिंग harsh, something disappointing, but again at the end of the day that will be for your own betterment only. So a positive card, I will not say at the end of the day it's a positive card, because again it will get you major change in your life, and that change you will definitely appreciate in the coming time. So that was from my side for the green pile. I hope you can resonate with the guidance, and do let me know in the comment section if you find the reveals resonating. And a very happy Valentine's Day to each and every one of you. Wishing you all the love, luck and success in your life. May your relationships blossom over the time period. May your life be filled with all the love and positivity and warmth. And may universe bless you all in the best of your interest. God bless you. Thank you so much.